हे कृष्ण। यशोदा, तनिक अपने लल्ला का मुखड़ा तो दिखा। कितना सुंदर बालक है। ऐसे नहीं कहते। चाहे हमें कोई कितना भी सिखा दे, पर लाइफ के सबसे बड़े लेसन्स हम खुद गलतियां करके ही सीखते हैं। अब चाहे वो करियर डिसीजन हो, दोस्त बनाना हो या एक लाइफ पार्टनर ढूंढना हो, जब हम कोई गलती कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त हमें वही सबसे ज्यादा सही लग रहा होता है, और उस वक्त अगर कोई रोके तो वो सबसे ज्यादा गलत लग रहा होता है। पर पता है, जब गलती करने के बाद उसका एहसास होता है ना, तो फिर याद भी वही लोग आते हैं जो हमेशा हमें उस जख्म से बचाने की कोशिश करते आ रहे हैं। प्रेम सुख ही नहीं है, दुख भी बहुत बड़ा प्रेम है। जैसे कुंती मैया ने जब वो द्वारिका जाने लगे, भगवान कृष्ण से क्या कहा, आप जा तो रहे परंतु जाते जाते मुझे एक वरदान देते जाइए, मेरे जीवन में कभी कोई सुख ना आए। ठाकुर जी को भी लगा कि अरे आजकल तो सब लोग छोटी सी पूजा करवाते तो कहते सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। वो कहते हैं कि सुख में हम आपको भूल जाते हैं, लेकिन जब जीवन में दुख आता है तो और कोई याद आए चाहे ना आए, आप ही याद आते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि निरंतर आप मुझे याद आते रहें, इसलिए मेरे जीवन में निरंतर ही दुख मिले, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। ऐसा नहीं है कि सुख से ही प्रेम होता है, दुख भी आपको बहुत प्रेम सिखाता है। हाय चले रखो है बेटी কেমন ছাবো আজকে রোদ নেই, আজকে রোদ আছে এই কি রোদ? এটাই রোদ, আমি নিজেও জানি না। এটাই রোদ। হাওয়া এই 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 সাথে জোরে থাকলাই Ani besai barbar no sung tong mani nor potol pusto macha ya khuda nei goti ne finally potol pusto macha kha. Ei morong na hade. Ei ko bong dol. Ei ko. Ba. Ei hi bong dol. গুগল প্লে করব না, আমরা দেখাবো তোমার দাদাকে। এই হলো আমরা। আমরা লা দেশে ওকে যারো মত না আমরা আমরা চাটনি খাই, বুঝলেন, চিনি দিয়ে টক খাই, টক আর এমনি খাই। হ্যাঁ বাজা খাই বেশি কম নিছে নাকি? হ্যাঁ নিছে, আবার লাগে আবার সব গুদ্দা ঢুকুম ভেকা বেশি রে কি করবে? আমার জামা তো ছেঁড়া। জামা ছেঁড়া হোক রে বাবা, আমরা পুরা টক নাই তো, কোনো টক নাই, পারলা বাদ দিন টক নাই, টক এলে খাই দে বেটা, মিষ্টি করলে তার ভালো, মিষ্টি করলে তার ভালো, মিষ্টি করলে তার ভালো, সব বলে দেবে, কাটে দিতে হবে। করলে দেবো, করলে লোকাল ठीक है ठीक है तो लग दीजिए आप किलो पोटा बाबा है ना Have you ever wondered what the secret to feeling good enough is? It's self-acceptance. When you truly accept yourself, you cultivate a sense of inner peace and confidence. But how do you build self-acceptance? It starts with small acts of self-care and positive self-talk. When you consistently nurture yourself, you begin to recognize your own worth. And here's the real secret. This nurturing is actually discipline in disguise. By being disciplined in your self-care routines, you enhance your self-acceptance, which in turn makes you feel good enough from inside. Keep that phone away and start here. 1. Write down 3 things that you love about yourself. 2. Take 5 deep breaths and focus on the present moment. And 3. Send a kind message to someone that you appreciate. 4. Drink a glass of water and enjoy the feeling of nourishing your body. जिंदगी में कभी न कभी शायद एक ऐसा इंसान मिलेगा तुम्हें जो तुमसे बड़े बड़े और प्यारे वादे तो जरूर करेगा, पर उन्हें कभी निभा नहीं पाएगा। और फिर तुम, जिसने बहुत सोच समझकर भरोसा कर लिया था उन पर, एक बार फिर से खुद को यही याद दिलाओगे कि भरोसा वादे करने वालों पे नहीं, वादे निभाने वालों पे ही करना चाहिए।
हम लड़कियों का ना हमारी माँ से बहुत अजीब रिश्ता होता है। कभी बनती है दोस्त हमारी, तो कभी बिल्कुल नादान सी बच्ची। बड़े होते होते हम उसे सिखाने लगते हैं कितना कहाँ कैसे बोलना है। हम बता देते हैं, उसकी हर गहरी चोट को समझ लेते हैं। सच बताऊँ तो अंदर से हम भी माँ जैसा ही बनना चाहते हैं। उसकी आंखों में आज तक घमंड नहीं देखा, गुरूर उसने मोहब्बत का किया। अब ऐसी लड़की से प्यार कैसे नहीं हो सकता है, जिसने हर वक्त कम-बकत सबका किया। Nothing is permanent and nothing is for long, be it happiness or be it sadness. A person cannot be happy throughout his life. From the day of his birth till the time he is alive, he cannot be the same. A person cannot be in a sadness for lifelong. So if you are in sadness or loneliness, don't put yourself in depression. That state will definitely change. Life would be really boring if you only want to see happiness. Then where are your efforts and where is your story? राधे राधे। बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र कर सके। राधे राधे। नमस्ते। जिंदगी में आधे से ज्यादा परेशानियां जानते क्यों आती है? क्योंकि जितनी जल्दी उम्र बढ़ती है उतनी ही देर से हमें अकल आती है। अब ये प्रोसेस अगर थोड़ा रिवर्स हो जाता तो लाइफ कितनी बेटर होती, पर अफसोस ऐसा हो नहीं सकता है। और इसी वजह से पहले हम बेवकूफियां करने में समय बिगाड़ते हैं, फिर उन्हीं को सही करने में समय बिगाड़ते हैं, और इसके बीच में कहीं ना कहीं हमारी लाइफ लटकती रहती है। और एक दिन रियलाइज होता है कि हम तो जिए ही नहीं। और जानते हैं बेवकूफियां होती कौन सी? कि जैसे हमारे सामने कोई मुश्किल परिस्थिति आती है, हमें लगता है अब तो सब कुछ फिनिश हो गया, लाइफ का दी एंड है, लाइफ खराब हो गई है। इतनी जल्दी कंक्लूजन्स पर जंप करते हैं कि उस समय में छुपी हुई अपॉर्चुनिटी को देखते ही नहीं है। याद रखिए कि आपके जीवन में आने वाला मुश्किल समय आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आता है, और ये अवसर आपको बेहतर बनाने ही आया है। फिर चाहे पर्सनली बनाए, प्रोफेशनली बनाए, हेल्थ वाइज बनाए, फाइनेंशियली बनाए, रिलेशनशिप में बनाए। लेकिन हम क्या करते हैं? सिर्फ मुश्किलें देखते रह जाते हैं, उसके पार देखने की कोशिश ही नहीं करते। तो याद रखिए, नेक्स्ट टाइम अगर आपके सामने कोई मुश्किल समय आ रहा है, भगवान को थैंक यू कहिए उस अपॉर्चुनिटी के लिए। डर से नहीं जीना है, हिम्मत से जीना है, क्योंकि जो डर से जीते हैं बेवकूफियां वही करते हैं। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। नमस्ते। राधे राधे। क्या अद्भुत बात कहते हैं कि बात बात पर शक करने वाले, रोक टोक करने वाले और सामने वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेने वाले व्यक्ति अंत में अपने प्रिय व्यक्ति को खो देते हैं महाराज। क्योंकि अपनी स्वतंत्रता को खो करके कोई आपसे प्रेम नहीं करेगा इस संसार में। कभी कभी ये जिंदगी एक रेस सी हो जाती है, ऐसा लगता है कि बस भाग रहे हैं। कभी अगर ज्यादा तेज भागो तो कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं, और अगर तेज ना भागो तो मंजिल छूटती नजर आती है। कहाँ जाना है ये तो पता होता है, पर बीच बीच में थोड़ी थकान सी भी हो जाती है। कभी कभी ये मधुबन में जो कन्हैया किसी को बात मिले, कभी मुस्काए कभी रोत मिले। मधुबन में जो कन्हैया किसी को बात मिले, कभी मुस्काए कभी रोत मिले। राधा कैसे न झले, राधा कैसे न झले। मधुबन में जो कन्हैया किसी को बात मिले, कभी मुस्काए कभी रोत मिले। राधा कैसे न झले। यशोमती मैया से पूछे नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। আমি হচ্ছে যশোদা মা আর এ হচ্ছে আমার নন্দলালা। গোপালের কাপড় এসেছে। এটা হচ্ছে দামোদরের ছবি, কার্তিক মাসে এটা তোলা হয়, রাখা হয়। তো আমি আসলে এই রুমগুলো পরিষ্কার করছো? এটা হচ্ছে আমার সাথে আট আনলে তো? তুমি প্রসেনজিৎ দাদার সাথে গেছো না? প্রসেনজিৎ দাদা বলেছে তুমি গেছো পরে আমরা তোমার পিছু লেগেছি, পাইনি তোমাকে। তারপর বলছিল যাবে না ছোট গোপালের কোথায়? কেন? ও কি পড়বে?
জিরো জিরো সাইজ ছোট গোপালের গোপাল নামছে শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবা। নঙ্গ পঙ্গ হয়ে গেছে পেছন থেকে গোপাল। খুলে নিতে পারি? এরকমই থাকবে। আসলে গোপাল বড় হয়ে গেছে। আমি ভাবছিলাম নয় সাইজের করে দাও। এটা হচ্ছে আমার দিদির বাড়ির তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে। এটা আমাদের বাড়ির তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে। পায়েও আছে, এটা কে দিয়েছে পায়ে? সব বাবা দিয়েছে, আর মা দিয়েছে আমাকে। আমিও দেবো, আমিও দেবো। আর এগুলো মা দিয়েছে। আচ্ছা গোপাল না মা জিনিস এটা কে নিবে? হাত দিবে। চলো বন্ধুরা, এটা কি করলে? কি হয়েছে? নতুন জামা পরেছে পরেছে পরেছে। এই হচ্ছে দিদি, নতুন জামা পরিয়ে দিয়েছে। এই হচ্ছে আরেক দিদি। ডা 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 ডা। এবার থেকে মার কিনতে হবে, তাছাড়া আমার থেকেও বড় হয়ে যাবে। প্রতি বছর আমার জন্মদিনে আগে আসে। Punya mau na ও আনুগতির সাথে আমি বলতে পারি সে সোনার মালা উল্টা মালা। গোপাল বড় হয়ে গেছে। গোপাল বড় হয়ে গেছে তোমার? হ্যাঁ। এ মা, আপ থেকে কবে লাল? ঠিক আছে ঠিক। यशोदा, तनिक अपने लल्ला का मुखड़ा तो दिखा। कितना सुंदर बालक है। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि नियत यानी इंटेंशन कितनी भी अच्छी हो, दुनिया बस आपका दिखावा देखती है। लेकिन वहीं उसका एकदम उल्टा है कि आपका दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान बस आपकी नियत देखते हैं। प्रेम सुख ही नहीं है, दुख भी बहुत बड़ा प्रेम है। जैसे कुंती मैया ने जब वो द्वारिका जाने लगे, भगवान कृष्ण से क्या कहा? आप जा तो रहे परंतु जाते जाते मुझे एक वरदान देते जाइए, मेरे जीवन में कभी कोई सुख ना आए। ठाकुर जी को भी लगा कि अरे आजकल तो सब लोग छोटी सी पूजा करवाते हैं तो कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। वो कहते हैं कि सुख में हम आपको भूल जाते हैं, लेकिन जब जीवन में दुख आता है तो और कोई याद आए चाहे ना आए, आप ही याद आते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि निरंतर आप मुझे याद आते रहें, इसलिए मेरे जीवन में निरंतर ही दुख मिले, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। ऐसा नहीं है कि सुख से ही प्रेम होता है, दुख भी आपको बहुत प्रेम सिखाता है। मुझे लगता है कि दुखी होने के दो ही सबसे बड़े कारण हैं। पहला, हमें हमेशा तकदीर से ज्यादा चाहिए, और दूसरा, हमें सब कुछ समय से पहले चाहिए। आप मरे उसके बाद 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीने 1 साल लोगों को पड़ता है फर्क, लेकिन उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो गया क्या आपके साथ में? आपका कर्म गया। आपके पास तो हर क्षण हर पल मृत्यु है, आपको नहीं पता है, और आ जाएगी तो भी आप किसी को बता नहीं पाओगे। तो उससे अच्छा है कि आप संसार में रह करके आप भगवत भजन, भगवत कृपा, भगवत संगति, शरणागति से जुड़ जाते हैं, तो आप मरने से भी सुंदर ऊपर उठ जाते हैं। जय श्री श्री तुलसी माता नमो नमः। जय श्री श्री तुलसी माता नमो नमः। जय श्री श्री तुलसी माता नमो नमः। কে কাটবো? মিথ্যা কথা। কি আনবো? একটা কাটো, চলো। হ্যাপি বার্থডে কানা।
प्रेम अकारण होता है, उसका कोई कारण नहीं है। सामने वाला भले कोई कारण मान रहा हो, यदि आप प्रेम वास्तविक कर रहे हैं तो आपको प्रेम अकारण ही करना चाहिए कि इसका कोई कारण नहीं है। आप मुझे अच्छे लग रहे हैं तो फिर लग रहे हैं, क्योंकि हर कोई आपको प्रेम के रूप में अच्छा नहीं लगता, सबसे आपको प्रेम नहीं होता। एक तो है जिसके प्रति आपका भाव बड़ा निश्चल जा रहा है, जिसके लिए कुछ सहजता से करने का मन कर रहा है, जिसके लिए इतना मन कर रहा है कुछ करने का, उसके लिए आप कोई बनावट मत रखिए अपने जीवन में। Funggong mo college time mo